दूसरी रहेगी कि आपको रहना रहेगा विद्यालय आपका कहाँ रहेगा, मशीन है ना, तो उसमें एक टूल एक मशीन सहिहारा के नाम से रहेगा, उसका सेपरेट आप रिपोर्ट बनाइएगा। ठीक है, उसका टारगेट 220 होगा, कैंप से जो भी काम हो। रह गया सर, ये नॉर्मल डिस्कशन है तो उसे म्यूट करके करें। अब तो ठीक है यार। हेलो, हाँ भैया, नमस्ते। मम्मी क्या कर रही है? अच्छा, मम्मी को ये बोल रहे हैं, वो ना वो अब्बू की ना पहले डेट शीट में तो लिखा था, लेकिन उसकी छुट्टी है, उसके पापा वापस ले गए हैं। मैंने कहा मैं व्हाट्सएप कॉलिंग करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, कहाँ हुआ? हाँ जी, हाँ, मैं ये कह रही थी वो अब्बू को वापस ले गए, अब्बू को वापस ले गए, उसकी छुट्टी थी। अच्छा, ठीक है। फूफा जी तो बोल रही थी, फूफा जी को बोल रही थी वो आएगी नहीं। मैं आऊंगी फिर 1 बजे के आसपास। ठीक है, हाँ वो जाए ना हमारा मित्र में। Hello, good morning everyone. Good morning, ma'am. Good morning, Harinder. Everybody join. How many join? How many? 28 only. Should we Should we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh. So today, Recording in progress. let me introduce first to my to my right side, Dr. Ajay Kumar Verma is sitting. He is head He is the head of the department at present. He is He is officiating head of the department, and in a week's time he will be permanent head of the department as Dr. Manpreet Bhalla has retired. And now he will be the in charge of National Reference Laboratory at our site. And if I talk about Dr. Ajay Kumar Verma, he is a very renowned microbiologist who has done a lot of work on NTM. NTM means non-tubercular mycobacteria. And while working in non-tubercular mycobacteria, he has told about and written few papers also. Around 15 papers he has already written about the clinical importance of NTM in the chronic lung diseases and all that. And he has done few publications on MDR TB also. And over to Dr. Ajit Kumar Verma. Good morning. Thank you, Dr. Niti, for a nice introduction. And I am Dr. Ajay Verma. This is my first eco session as a head of the department, and will continue and see you in the next
eco session onward. So So my colleague Dr. Manpreet Kaur will present today eco session about the instrument, and let Dr. Manpreet Kaur to join and start the session. Thank you all for session. Dr. Manpreet, please start. Morning all. I'm Manpreet, another biomedical engineer. हमें जाना चाहिए कि क्या Hello Lakshmi, are you there? Kindly Kindly share the PPT. okay, Okay, ma'am. Just a minute. Lex. That's one month. Hello, ma'am. Hello, ma'am. My screen Hope is my screen is visible. visible. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Which everyone visible studies are visible. Is it Is that visible to everyone? Yes, Yes, madam. Yes. Okay. Can we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. So we are presenting on lab equipment maintenance and calibration. Last time we discussed calibration, AMC, CMC, and condemnation. So So today we are discussing about maintenance. ये equipment की जो maintenance है वो कैसे करना है? It's not कि how to use. इसमें use नहीं है. इसमें purely आपको maintenance के ऊपर calibration के ऊपर discuss करेंगे. So next is Street food system. है ना? लोगों को कैसे समझ आएगा? So these So these are the list of major list of equipment of TD lab, which is biosafety cabinet, microcentrifuge, reference centrifuge, microscope, जो हम daily use करते हैं lab में equipment. तो आप सब lab में देखते हो, आप सबको पता है इसको कैसे use करना है, इसको कैसे maintain करना है. Just slowly कि आपको कैसे थोड़ा सा आपकी revision के लिए कि इसको properly maintain कैसे करना है. जब आप इसको properly maintain करोगे तभी वो ज़्यादा efficiency देंगे, आपको अच्छे results देंगे, आपकी equipment जो है ज़्यादा चलेंगे और आपको उसमें complaints कम आएंगी. So next is equipment maintenance. तो equipment maintenance हमारी क्या होती है? हमारी daily maintenance होती है, weekly होती है, monthly होती है, biannually और annually perform करते हैं हम. जो हम daily, weekly और monthly perform करते हैं वो हम खुद perform करते हैं. मीन्स lab में जो concern person है, जो user है वो perform करते हैं. और जो biannually और annually होते हैं वो आपके service person जिस कंपनी की सर्विस आपने ले रखी है, जो एजेंसी आपके पास आती है, आप उनको कॉल करके biannually और annually सर्विस के लिए आप उनको बोलिए कि आप ये प्रॉपर आके टाइमली आके इक्विपमेंट की सर्विस आपको प्रोवाइड करवाएं. नेक्स्ट इक्विपमेंट मेंटेनेंस. इसमें आपको ये डिफाइन किया कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन को आप इक्विपमेंट को यूज ना करने दे और ना ही उसको कभी सर्च करने दे. कि अगर कोई सर्विस पर्सन भी कोई बाहर से भी आ रहा है तो अगर जब तक वो ऑथराइज नहीं आ रहा किसी लोकल को या ऐसे ना दिखाएं जो इक्विपमेंट का ऑथराइज पर्सन है, आप कोशिश करें कि आप उसी को ही इक्विपमेंट को दिखाएं. उसके बाद आप इक्विपमेंट जो भी ऑपरेट करें, जिसको भी आपने प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए आपको उसके पास, आप ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करवाइए. कोई भी आपका इक्विपमेंट है, आपका ऑटोक्लेव है, आपके सीटी नाट है, आपका टू नाट है, आपका कोई भी इक्विपमेंट है, जब तक आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिलाते तब तक आप उसको इक्विपमेंट को यूज ना करें. और वही पर्सन यूज करें जिसके पास ट्रेनिंग हो और ऑथराइज्ड पर्सन हो. और आप इक्विपमेंट की जो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन आपको जो एप्लीकेशन इंजीनियर आपके पास आता है कि आपको मशीन को ऐसे यूज करना है, ऐसे यूज करना है, तो प्रॉपर आप उसकी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करें. जो एसओपी आपकी इक्विपमेंट की एसओपीज है प्लीज आप उसी को फॉलो करें. उसके बाद हर इक्विपमेंट की आप एक्सेल में फाइल जरूर मेंटेन करें. इक्विपमेंट की पूरी डिटेल जिसमें आप इक्विपमेंट का किस दिन आपने परचेज किया, आपने इक्विपमेंट का डिटेल, कैलिब्रेशन, पीएम और
इक्विपमेंट का आप एक पूरी एक्सेल शीट मेंटेन करें जिसमें आप इक्विपमेंट की सारी डिटेल्स आप मेंटेन रखें कि आपके पास टोटल कितने इक्विपमेंट्स हैं लैब में, एएमसी सीएमसी में है, वारंटी में है, आपकी उसकी पीएम कैलिब्रेशन, उसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, आप उसका सारा डिटेल्स एक एक्सेल शीट में मेंटेन करें। इससे आपको इजी रहेगा कि आपको यहाँ हमारे फाइल में नहीं ढूंढना पड़ेगा और आप एक अपनी एक्सेल शीट ओपन किए और उसी में आपको एक एक इक्विपमेंट की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको हर इक्विपमेंट की एक सेपरेट फाइल जरूर बनानी है। जैसे आपके पास कैबिनेट है, प्लीज आप कैबिनेट की एक अलग फाइल बनाएं, ऑटोक्लेव की अलग फाइल बनाएं। इससे आपके लिए इजी रहेगा कि जब भी आपसे कोई इक्विपमेंट के लिए फाइल चाहिए होगा तो आपको बहुत सारे पेपर्स को नहीं ढूंढना पड़ेगा। आपके लिए इजी रहेगा कि आप उसी इक्विपमेंट की फाइल निकालो और आपको पेपर उसी में ही प्लेस करने हैं, चाहे उसकी कैलिब्रेशन की रिपोर्ट हो, चाहे उसकी पीएम की रिपोर्ट है, चाहे सर्विस की रिपोर्ट है, चाहे ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। आप एक फाइल मेंटेन करें हर एक सिंगल इक्विपमेंट के लिए, आप उसी में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्लेस करें। सेक्शन इंचार्ज और टेक्निकल मैनेजर उसको रिव्यू जरूर करें कि आपके ध्यान में होना चाहिए, आपके मैनेजर को आपके जो इक्विपमेंट मेंटेन कर रहे हैं उनके पास सारा साइन होनी चाहिए, रिपोर्ट जो भी आपके पास हो उनके ध्यान में होना चाहिए कि ये सारी रिपोर्ट आपके पास मेंटेन है। नेक्स्ट प्लीज। आपको हर इक्विपमेंट के डेली लॉग जरूर मेंटेन करने हैं और हर इक्विपमेंट के आपको लॉग्स मेंटेन करने हैं। अगर आपके पास लॉग्स ना हो तो आप अरेंज कर लीजिए, आप मुझे बोलिए तो मैं आपको अरेंज करवा दूंगी। पर आपको हर इक्विपमेंट के आपको लॉग्स जरूर चाहिए और एसओपीज आप जरूर आप हर इक्विपमेंट के आप लगाइए। पीएम और कैलिब्रेशन के आपको टेस्ट क्या क्या देते हैं? पीएम एंड कैलिब्रेशन जब आप किसी को परफॉर्म करवाते हैं आपको बाई एनुअली, वैसे तो हम ईयरली ही परफॉर्म करवाते हैं, सिर्फ पाइपेट की आप 6 मंथ से करवाते हैं और 6 मंथ से ना भी सही तो आप ईयरली तो मैंडेटरी है कि आपको करवाना ही करवाना है आपको कैलिब्रेशन। तो उसकी पीएम और कैलिब्रेशन आपको कैसे करवानी है, आप अपने सर्विस इंजीनियर को कॉल कीजिए, उसको जब आपकी डेट ड्यू होने वाली हो एटलीस्ट उससे 1 मंथ पहले ही आप उनको कॉल कर दें, उनको एक या तो मेल कर दें या तो उनको कॉल करें कि आपकी पीएम ड्यू होने वाली है आपकी इस इक्विपमेंट की, आप कॉल लॉग जरूर करवाएं और उसके बाद आप सर्विस इंजीनियर को बुला के आप उसकी पीएम और उसकी कैलिब्रेशन परफॉर्म करवाएं। जब भी कोई कैलिब्रेशन परफॉर्म करने आए तो आप प्लीज कंसर्न पर्सन उसके पास रहा करें ताकि आप देख सकें कि जो सर्विस पर्सन आ रहा है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, आपके सामने इक्विपमेंट को चेक करें। और क्या जो भी आप इक्विपमेंट आप कैलिब्रेट करवा रहे हो, जो भी आप इक्विपमेंट कैलिब्रेट करवा रहे हो, पीएम करवा रहे हो, आप अपने इक्विपमेंट के ऊपर टैग लगाएं जैसे आपको दिखा रखा है। इक्विपमेंट के ऊपर आप टैगिंग जरूर करें जिसमें आप उसका इक्विपमेंट का नेम, आईडी, मैन्युफैक्चरर, सीरियल नंबर ये सब आप लिखते हैं उस पर और कंसर्न पर्सन का आप नंबर भी डाल सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। और आप पीएम की डेट, डन डेट, ड्यू डेट और पीएम डन, कैलिब्रेशन डन और ड्यू डेट आप इससे जरूर मेंशन करें। वो आपके इक्विपमेंट के लिए ये मैंडेटरी है, ये करना ही करना है। आप सब कोशिश करें कि जरूर करें जब आपका पीएम कैलिब्रेट हो जाए पीएम हो जाए उसके स्टिकर्स भी चेंज करने हैं, पुराने नहीं रखने हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिपोर्ट फॉर्मेट। आप जब कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपके पास करने आ रहा है तो आपको उसमें मेजरली क्या क्या फैक्टर्स आपको चेक करने हैं। आपको उसको नेम, मॉडल, सीरियल नंबर, इक्विपमेंट के आपको सब कुछ चेक करना है कि वो सही लिखा, वो नहीं लिखा। डेट ऑफ विजिट आपने देखनी है कि उन्होंने किस दिन की डेट डाली है, आज की डेट डाली है या कल की डाली है या 1 मंथ पहले की डाली है, तो डेट ऑफ विजिट की आपने जरूर चेक करनी है। उसके बाद आपने वर्क डन बाय एजेंसी ये जरूर देखना है कि आपकी एजेंसी ने क्या काम करा है, जो एक्शन में उन्होंने लिखा होता है कि हम इक्विपमेंट की पीएम की है, हमने कैलिब्रेशन करी है या इसमें पार्ट रिक्वायर्ड है, तो आप उसको वो भी पढ़िए, उसको बिना पढ़े साइन मत कीजिए और आप उसको देखिए कि उसके साथ चेकलिस्ट लगी है या नहीं लगी और आपने लास्ट में अपने साइन और स्टैम्प भी उस पर जरूर करने हैं। कैलिब्रेशन रिपोर्ट फॉर्मेट। कैलिब्रेशन में भी सेम है, आपको मेक, मॉडल, सीरियल नंबर ये सब जरूर चेक करना है उसके ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर क्या स्टेटमेंट का सही है नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ कैलिब्रेशन डन और कैलिब्रेशन ड्यू डेट आपको ये भी उस पर चेक करना है। उसके बाद आपको रीडिंग आपको देखनी है कि आपके इक्विपमेंट की तो उसने रीडिंग डाली है, क्योंकि कैलिब्रेशन में आप जनरली क्या करते हैं, आप रीडिंग देखते हो उसकी कि जस्ट लाइक आपने अपने इंक्यूबेटर या कोल्ड रूम वो करवाया तो वो उसकी रीडिंग चेक करते हैं कैलिब्रेशन में। बेसिकली पीएम है उसकी क्लीनिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, वो उसको ओवरऑल चेक करके जाते हैं कि परफॉर्म सही कर रहा है या नहीं कर रहा। कैलिब्रेशन में वो आपकी रीडिंग चेक करते हैं कि क्या ये सही रीडिंग दे रहा है ये इक्विपमेंट हमारा या नहीं दे रहा। विद थर्मोमीटर जो चेक करा उन्होंने कि हमारी आपका फॉर एग्जांपल -20 है, वो अपना थर्मोमीटर लाएंगे, उससे चेक करेंगे कि इसकी एग्जैक्ट रीडिंग 4 टाइम 5 टाइम सही कितनी रीडिंग आ रही है, वो उसको चेक करेंगे। और जो आपका इक्विपमेंट है
जिस टूल से आपका इक्विपमेंट कैलिब्रेट हुआ है उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। टूल भी कैलिब्रेट होना चाहिए और उसका भी ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी जरूर होना चाहिए। If anyone having any question, they can put their question in the chat box, or even they can ask. Dr. Gavish, would you like to say something in this? No. Dr. Niti, would you like to add something in this? Thank you, sir. Next. ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है? जिस टूल से अभी बताया कि आपका इक्विपमेंट कैलिब्रेट हुआ है, जैसे थर्मामीटर है, जो कंपनी वाला अपना थर्मामीटर लेके आया वो भी कैलिब्रेट होना चाहिए। तो जिस टूल से वो कैलिब्रेट हुआ है उसका ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो जिस टूल से वो आपका उसने कैलिब्रेट किया, आपको उसका भी ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट मीन्स वो सर्टिफिकेट भी आपको लेना है उनसे। आपने उससे भी चेक करना है उसकी डेट कि वो भी कैलिब्रेटेड है या नहीं। उसकी भी कैलिब्रेशन की डेट लिखी होती है कि वो भी कैलिब्रेट होना चाहिए। और उसके बाद आप ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर आपने NABL का लोगो जरूर देखना है कि उसके ऊपर लोगो है या नहीं है, क्योंकि वो कि उन्होंने NABL एक्रेडिटेशन कहाँ पे उनकी एजेंसी है, उनके पास एक्रेडिटेशन है या नहीं है, उस पर कैलिब्रेट होना चाहिए आपका ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट और टूल। अब स्टार्ट करते हैं हम इक्विपमेंट की मेंटेनेंस। आपको कैसे मेंटेन करना है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि आपको इक्विपमेंट को आपको कैसे मेंटेन करना है, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली। और उसके बाद थोड़ा सा ये था कि आपको उसकी PM कैलिब्रेशन ये सब कैसे करना है और आपको फाइल कैसे मेंटेन करनी है। नाउ आपको कुछ इक्विपमेंट के ऊपर कि आपको उनको डेली कैसे मेंटेन करना है। तो सबसे पहले ऑटोक्लेव सबके पास होगा, सब यूज करते हैं। स्टरलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं ऑटोक्लेव। हम ग्लासवेयर के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं। आप सभी को पता होगा हम कैसे यूज करते हैं, हम उसको कितने टेम्परेचर पे करते हैं। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई होगी उसकी, उसको कैसे मेंटेन करना है, डेली में, वीकली में, एनुअली में आपको कैसे मेंटेन करना है। बट दिस इज आपको आपके लिए कि आपको इजी रहेगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको प्रॉपर उसको कैसे मेंटेन करना है। तो ऑटोक्लेव आप उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे उसको सेट करते हो, 120 डिग्री तक आप करते हो। उसके बाद हर इक्विपमेंट में +-5 पर थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है कि अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट 120 नहीं आ रहा, 180 भी आ रहा है, तो दैट्स इट, आप उसको यूज कर सकते हो टाइम पर भी। उसके बाद आप उसको डेली मेंटेनेंस में आपने उसका क्या क्या सेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉग सब इक्विपमेंट के लिए आपको मेंटेन करना है। सब इक्विपमेंट के लिए आपको हर इक्विपमेंट के लिए डेली लॉग और डेली उसमें आपने फिल करनी है उसके रेटिंग से। आपको उसके लिए लॉग मेंटेन करने हैं। उसके बाद जब आप इक्विपमेंट चलाएं उसका आप चेक करें, वाटर लेवल आप जरूर चेक करें कि उसपे मार्क होता है। आपको उसका वाटर मिनिमम आपको फील करना है, उसकी एयर, उसके वेपर, उसके जो आपकी उसके ऊपर गॉल्स लगे होते हैं, जो टेम्परेचर गेज और प्रेशर गेज होते हैं, आपको देखना है जब वो स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 0 पे होने चाहिए उसकी रीडिंग। गेज पूरे प्रॉपर वर्क करने होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आप उसको ऑन कर दो, उसके गेज पे रीडिंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपके गेज खराब है, उसको चेक करवाना। उसके बाद आपको उसके सर्विस को सॉरी उसके एक्सटर्नल सर्फेस को भी आपको क्लीन करना है। आपने अंदर से तो उसकी क्लीनिंग का ध्यान रखना ही है, उसके बाहर से भी आपको क्लीनिंग का ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ऑटोक्लेव में कहीं से भी लीकेज ना हो। जैसे आपने उसका डोर जो है प्रॉपर बंद करना है, अगर प्रॉपर बंद ना हो तो डोर से लीकेज होगी, तो आपकी उसमें स्टीम नहीं बनेगी, तो आपका प्रॉपर वो आपका टेम्परेचर अचीव नहीं करेगा। उसकी गास्केट ठीक होनी चाहिए, गास्केट कहीं से लूज नहीं होनी चाहिए। अगर गास्केट भी लूज है तब भी उसमें प्रेशर नहीं बनता, ठीक है। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना, उसको यूज करते हैं टाइम से कि आपका ये सब मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका ये सब मेंटेन है तो प्रॉपर आपकी एफिशिएंसी वो देख पाएगी। उसके बाद आपको डेली नहीं करना है, आपको जो उसका चैम्बर है उसको पूरा चेक करना है कि ड्रेनेज है उसको स्टरलाइजेशन पे। और उसके बाद उसका जो बाहर एरिया है उसको माइल्ड डिटर्जेंट से आपको क्लीन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको पूरा पानी से बहुत अच्छे से धो दिया। तो आपने हर इक्विपमेंट को एक क्लीनिंग का एक अलग प्रोसेस है, उसी से ही करना है, क्योंकि इक्विपमेंट में रोज बहुत जल्दी आ जाता है। अगर वो मेटल का एरिया है उसका जो भी, तो प्लास्टिक एरिया, मेटल एरिया, हर इक्विपमेंट में आपको ये सब भी ध्यान रखना है। आपको एथेनॉल से करना है, आपको फिनॉल से करना है, आपको माइल्ड डिटर्जेंट से करना है, या आपको सिर्फ एक क्लोथ से करना है। तो वो हर इक्विपमेंट में आपको अलग अलग एक तरीका है करने का, सब इक्विपमेंट का सेम नहीं होता। तो आपने क्या करना है,
उसके बाद उसकी इंडिकेटर्स भी आपको चेक करने हैं। अभी की इंडिकेटर जरूर उसके चेक करें कि वो सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अगर इन केस आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज उसके लिए फॉलो अप करवाएं। सर्विस इंजीनियर आके विजिट करेंगे और आपको जो भी आपका ठीक करके जाएंगे। देन उसके बाद आपकी एनुअल मेंटेनेंस आती है। तो एनुअल मेंटेनेंस भी आपकी एजेंसी आपने जिस एजेंसी को दे रखा है, जो आउटसोर्स आपकी एजेंसी है, आप उनको 1 मंथ पहले ड्यू होने से पहले आप उनको कॉल करें, मेल करें, आप उनको बुलाएं और अपनी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करवाएं, कैलिब्रेशन करवाएं, पीएम करें, ठीक है। नेक्स्ट, Now we are discussing biosafety cabinet. तो biosafety cabinet आपने यूज किए हैं, आपको पता है सेफ्टी के लिए प्रोडक्ट है, आपके लिए ही ये प्रोडक्ट है, आप अच्छे से उसको यूज करें। आप ही की सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी के लिए यूज है। तो आपको उसको क्या करना है, सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है, उसको सिर्फ एक ट्रेन पर्सन ही चलाना है। आप कोई भी जैसे आपके पास किसी को भी ऐसे ना बोले कि आप जाके कोई भी जाके उसको क्लीन करे या कोई भी जाके उसको छेड़े नहीं। जो एक प्रॉपर ट्रेन पर्सन है वही बायोसेफ्टी कैबिनेट को जाके उस पर काम करें, उसको टच करें। जब तक पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो आप प्लीज उसको यूज मत करें, उसकी क्लीनिंग मत करें। तो डेली क्लीनिंग में आपको मेंटेनेंस में आपको क्या करना है, आपने उसका लॉग मेंटेन करना है। सबसे पहला तो ये भी मैंडेटरी है, सभी स्टूडेंट के लिए है कि आपकी लॉग सबका मेंटेन करना है। उसके बाद डेली में आपको पेपर टेस्ट करना है या फिर एनीमोमीटर से अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे टेस्ट करें। अदरवाइज आपको पेपर टेस्ट तो करना ही करना है। पहले हम स्मोक टेस्ट करते थे, लेकिन अब सब जगह नई बायोसेफ्टी है तो हम उसके लिए पेपर टेस्ट करते हैं कि आप उसका देखिए कि उसका एयर का प्रेशर उसमें आ रहा है नहीं आ रहा, सारे पूरा प्रॉपर मेंटेन हो रहा है उसमें कि नहीं हो रहा। उसके बाद आपको सर्फेस को डिसइंफेक्ट करना है, आपने अंदर के सर्फेस को भी और बाहर के सर्फेस को भी इसको डिसइंफेक्ट करना है। आपने 5% फिनॉल से करना है, देन उसके बाद 70% इथेनॉल से करना है आपने उसको, ठीक है। उसके बाद जो आपका ग्लास हो रहा है उसको भी आपने 70% इथेनॉल से करना है। पर जो यूवी लैंप है आपने उस पर इथेनॉल नहीं लगाना, उसको नॉर्मल आप उससे कर सकते हैं, गॉस से या उसको कर सकते हैं, पर उसका इथेनॉल नहीं लगा। मतलब वीकली मेंटेनेंस में आपको फिर से भैया आपको डिसइंफेक्ट करना है, उसके बाहर के एरिया को भी और अंदर के एरिया को भी। और एनुअली उसमें एनुअली में आपको कंपनी पर्सन को बुलाएं, आप उसके फिल्टर्स चेक करवाएं, उसका ब्लोअर चेक करवाएं, उसका एग्जॉस्ट सिस्टम चेक करवाएं, उसकी मोटर चेक करवाएं, उसके प्रेशर गेज चेक करवाएं, आप बुलाएं और सर्विस पर्सन ये सारे फैक्टर्स चेक करें। और आप एक सेफ्टी कंसर्न पर्सन को उसके साथ जरूर रखें जो आपका जाके चेक करे कि वो प्रॉपर कर रहे हैं या आपका वो नहीं कर रहे, आपके फिल्टर्स जरूर चेक करें कि आपकी फिल्टर कितनी लाइफ और स्टैंडिंग है और कितना भी यूज हो चुका है, उसमें कितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सारी आपकी कैलिब्रेशन में आपके आ जाता है कि अभी फिल्टर जो आपके चौक हो चुके हैं कि अभी क्लीन है। तो आपने वो सब भी जरूर उसमें नोटिस करना है और चेक करना है रिपोर्ट में कि उनकी कितनी एफिशिएंसी भी रहती है। तो अगर आपके फिल्टर चौक हो गए हैं, खराब हो गए हैं, तो इसको डिस्पोज करने के भी एक प्रॉपर वे है, उसकी गाइडलाइंस है कि इसको आप खुद से नहीं करना, एक तो नेक्स्ट हैंड से कुछ नहीं करना। जब भी आप करो आप उसको किट अपनी पीपीई किट पहनो, ग्लव्स पहनो, जब भी आप बायोसेफ्टी कैबिनेट का हाथ लगाओ तो कभी आपने नेक्स्ट हैंड से नहीं लगा। तो जो आपका सर्विस पर्सन आएगा हैपा फिल्टर की तरह वही लेके जाएंगे और वही उसको रिपोर्ट भी करेंगे। नेक्स्ट, अब AHU और BSL आप ये दोनों चीजें आप ये सब मेंटेन करना, आपको उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना, आपको ये सब भी जरूर देखना है। आपको BSL का लॉग भी मेंटेन करना है, आपको ये जाके जरूर देखना है कि आपका उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन हो रहा है, उसका भी लॉग मेंटेन करना है। देन आपको ये उसका देखना है कि आपका एंटी रूम है, आपको उसका चेंजिंग रूम है और अंदर का जो प्रेशर है उन सबके प्रेशर की रेंज है। जैसे आपका एंटी रूम के लिए आपको -12.5 इतना होना चाहिए, आपका पास्कल होना चाहिए। तो अगर जैसे आपके बाहर एक गेज सिस्टम लगा होता है, रीडिंग के लिए आपके पास लगा होता है, आप उसमें चेक करें कि इसकी कितनी रीडिंग आ रही है। अगर उसकी बिल्कुल -20 जा रही है या बिल्कुल -30 जा रही है, -40 जा रही है, बिल्कुल 0 आ रही है, तो इसका मतलब या तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने उसको सर्विस पर्सन को बुलाएं और उसको चेक करवाएं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको रेक्टिफाई करवाएं जरूर, ठीक है। जब भी आप AHU को ऑन करें, आप पूरा उसका प्रॉपर पहले पैनल को देखें, उसके पैनल को ऑन करें, स्टार्ट करें और आप देखें कि आप जब सुबह आके आप स्टार्ट करते हो, आपने देखना है कि आपका उसमें मोटर चल रही है, उसमें नेगेटिव प्रेशर, कूलिंग, उसमें सब मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अपनी सब सारे फैक्टर्स ऑन करते टाइम देखें, ठीक है। और अपने लॉग में भी ये सब मेंटेन करना है कि उसमें कितना प्रेशर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा।
और आपने वर्क कंप्लीशन के बाद जब आपका डेली का काम खत्म हो जाए उसके बाद आपने ASU ऑफ शुरू करना है। ASU को आपने ऑन नहीं छोड़ के जाना। अपना जो आपका पूरा पैनल होता है, जहाँ ASU का पैनल होता है, आप जहाँ से स्टार्ट करते हो उसको ऑन करते हो, तो उसको ऐसे ऑन नहीं छोड़ के जाना। काम खत्म होगा उसके बाद उसको बंद जरूर करें। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज, ये भी सभी के पास होते हैं। आपने देखा, आप किस लिए यूज करते हो? आप सेडिमेंटेशन के लिए आप यूज करते हो उसको, आप अपना ट्यूबरकुलोसिस वेसिस के लिए और आप लिक्विफाइड स्कोसा या बॉडी फ्लूइड सब के लिए आप सेंट्रीफ्यूज यूज करते हो। सेंट्रीफ्यूज को भी मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि उसकी क्लीनिंग भी बड़ी जरूरी है। उसमें कोई भी लिक्विड उसके अंदर, मोटर के अंदर नहीं जाना चाहिए या इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जब आप क्लीन कर रहे हो तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप उसको डैम्प क्लॉथ के साथ उसको उसका सारा जो चैम्बर है उसको क्लीन करें। उसकी जो रोटर है तो उसको प्रॉपर प्लेस करना चाहिए आपको। अगर वो ऊपर नीचे है तब भी आपके उसमें प्रॉपर वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको डेली मेंटेनेंस में उसका क्या क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चेक करना है कि वो सही से प्लेस है कि नहीं है। अगर वो ऊंचा नीचा है, अच्छे से प्लेस नहीं है, मतलब तो वो वाइब्रेशन देगा, वो प्रॉपर से चलेगा नहीं। तो उसकी बैलेंसिंग करें पहले, उसकी बकेट की, इवन सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। उसकी बकेट की भी आपको प्रॉपर बैलेंसिंग करनी है। देन उसके ट्यूब के लिए जब तक वो प्रॉपर प्लेस नहीं होंगे उसमें वाइब्रेशन आएंगी, उसमें नॉइस आएगी और वो अच्छे से काम नहीं होगा। तो आप सबसे पहले उसको ये चेक करें कि वो पूरा प्रॉपर बैलेंसिंग है या नहीं। देन उसके बाद उसको उसके डेली मेंटेनेंस में क्या अपने You have a car. You have a लिक्विड नहीं जाना चाहिए मोटर के अंदर। आप नॉर्मल सिर्फ ये है कि हल्का हल्का उसको क्लीन करना। ठीक है, उसके बाद आपने इसको भी ऑफ करना है। जो सुबह के खोलो उसको ड्राई होने देना उसको, और उसके बाद जो उसका लीड है उसको प्रॉपर उसको जरूर बंद करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी है आपने, अगर आपका रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज अगर गर्म है, हॉट है, उसको तब यूज नहीं करना। अनयूजुअल अगर उसमें वाइब्रेशन आ रही है या कुछ आपको अनयूजुअल नॉइस आपको लग रही है, फील हो रही है कि उसमें कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आपने क्या करना है? आपको यूज नहीं करना। अगर आप जो भी अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो सबसे पहले आप सर्विस टेक्नीशियन को कॉल करें और उनको बोलें। तो ऐसा ना हो कि आपको हल्का सा वाइब्रेशन भी फील हो, नॉइस फील हो, तो आप चला रहे हो उसमें, ऐसे नहीं चलाना हर इक्विपमेंट को, फिर उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आपने मंथली और इसका भी आपने डेली लॉग मेंटेन करना। मंथली में आपको क्या करना है? उसकी होल्डिंग, उसका रोटर, उसका चैम्बर, उसकी एक्सेसरीज, उसको सब कुछ आपको क्लीन करना है ऊपर की। उसके बाद उसको प्लास्टिक और नॉन मेटल वाला है वो तो आप फिनॉल से कर सकते हो। बाकी भी आप फिनॉल मत यूज करना क्योंकि डस्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो बाकी जो उसका पार्ट है वो डिस्टिल वाटर से आप कर लेना। अगर वो भी बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि उसमें बहुत ज्यादा वाटर, एक नॉर्मल क्लोथ से आप उसको क्लीन करना। उसके बाद में क्लीन करने के बाद नेक्स्ट माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, ये भी सेम है आपके रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज की तरह, बस वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे काम करता है। इसके लिए आप इस नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करता है। तो दोनों की एप्लीकेशन क्या है? तो रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज एंजाइम के लिए, प्रोटीन के लिए, RNA, DNA और डेलिकेट बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए यूज करते हो। जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज यूज करते हो आप DNA एक्सट्रैक्शन और PCR के लिए आप ये यूज करते हो। तो इसकी भी डेली मेंटेनेंस और वीकली मेंटेनेंस इसकी भी मैंडेटरी है। सबसे पहले आप इसके भी लॉग भरेंगे। आपको लॉग सभी इक्विपमेंट के भरने हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले जब भी आप किसी भी इक्विपमेंट को अगर क्लीन करने लगे तो आप हर इक्विपमेंट को सबसे पहले उसका प्लग जो है हम बात करना चाहते हैं। ऐसा ना हो प्लग में ऑन है, आप सभी कर रहे हो, तो आप कोशिश करें कि उसका प्लग निकालें, उसके बाद उसकी क्लीनिंग करें। फिर होल्डिंग क्लीन करें, उसके बाद उसको चैम्बर क्लोज क्लीन करें उसके साथ भी है। क्लीनिंग के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसको सुखाएं जरूर। आप जब भी अगर आपको अल्कोहल या किसी और चीज के साथ भी अगर कर रहे हो, प्लास्टिक एरिया जो भी एरिया, तो आप पहले उसको सूखने दें, उसके बाद उसमें सब उसको यूज करना स्टार्ट करें। ठीक है, और वीकली क्लीनिंग में भी आपको यही ध्यान रखना है कि उसका रोटर, उसके एक्सेसरीज प्रॉपर आप चेक करें, उसको क्लीन करें। उसके बाद उसको प्रॉपर, उसके बाद कंटामिनेशन जो है उसको हटाना है वहां से। और उसके बाद अगर आप उसमें यूज कर रहे हो, वाटर यूज कर रहे हो गर्म पानी, मतलब थोड़ा गर्म, हल्का गर्म, उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए 20-25 के बीच में होना चाहिए। ऐसा ना हो बहुत ज्यादा गर्म कर दिया ठंडे वाटर से, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल 20-25 डिग्री के बीच का टेम्परेचर का वाटर करके आप उससे हल्का सा डिप करके उससे क्लीन कर सकते हैं। वही मोटर के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, मोटर के अंदर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आप उसको अच्छे से निचोड़ के फिर उसको क्लीन करें उसके साथ। तो आप जो भी है उसके बाद उसको सुखाएं जरूर, सूखे कपड़े के साथ सुखाएं, फिर उसके बाद उसमें रोटर लगाएं प्रॉपर। हर चीज में आपने उसका भी जो रोटर है वो प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। ठीक है,
माइक्रोस्कोप आप यूज करते हो, बैक्टीरिया, सेल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सब आप देखने के लिए सभी लैब्स में आपको माइक्रोस्कोप आप यूज करते हो। आप उसको डेली मेंटेन भी करते हो, तो आप उसको कैसे यूज करते हो, आप उसकी डेली मेंटेन क्या क्या करना है, सभी सेम प्रोसेस है, सभी डेली लोग करें। उसके बाद आपको क्लीन करने के लिए इमर्स जो ऑयल है वो उसका 100 इंटू ऑब्जेक्ट जो है उससे क्लीन करें। उसके लिए उसको क्लीन करने के लिए आप पेपर या पाइप ले सकते हो, आप उससे क्लीन करें। लेकिन अगर आप कॉटन से करेंगे तो कॉटन के फाइबर जो है वो लेंथ से रह जाएंगे, तो आप एक पाइप लेके उसी से क्लीन करें उसको, और उसका सैंपल होल्डर भी है वो भी क्लीन करें। देन मंथली में आपको क्या करना है, उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन भी करें आपकी, वो कहीं से टूटा तो नहीं, सब ठीक होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए इसका। उसके बाद जो उसके डस्ट पार्टिकल है, जो एक्सटीरियर बॉडी है, बाहर की बॉडी है, उसके डस्ट पार्टिकल्स भी आपको उसके हटाने हैं टेम्प क्लोथ के साथ में, आपको वो क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वो क्लीन करने के बाद उसकी जो आईज जहाँ पे आई पीस है आपको उसको भी क्लीन करना है, उसके जो रबर बल्ब है वो आपकी उसके वो सब अपने एरिया को उससे क्लीन करना है, ठीक है। वो सब क्लीन भी आपने वाइप के साथ क्लीन कर सकते हैं, या आपका लेंस पेपर आ रहा है उसके साथ क्लीन करें। आप इसके लिए कॉटन बस यूज करें, किसी से भैया कि उसका फाइबर रह जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाएंगे, तो आपको उसमें क्लीन प्रॉपर नहीं करना, ठीक है। तो आप स्लाइड होल्डर मैकेनिज्म जो है उसको भी प्रॉपरली केयरफुली उसको क्लीन करें, उसको दोबारा इंस्टॉल करें। माइक्रोपिपेट हमारी बहुत सारे तरह की होती है, बहुत सारे टाइप की होती है। आप अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, आप 100 to 1000 यूज कर रहे हो, या 1 to 10 यूज कर रहे हो, 2 to 20 कर रहे हो, ये अलग अलग टाइप्स हमारे माइक्रोपिपेट के होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी माइक्रोपिपेट के अलग अलग पार्ट है कि आपका प्लंजर है, आपको टिप इंजेक्टर करना है, ये आपको इन सब चीजों का जो माइक्रोपिपेट है ये आपको प्रॉपर यूज करनी है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है उसके हैंडल में या उसके प्लंजर में या पुश बटन में कहीं पर भी, तो आप उसको जरूर चेक करवाएं। उसकी कैलिब्रेशन मैंडेटरी है, आपको बिल्कुल इसको टाइमली कैलिब्रेट करवाना है। पॉसिबल है तो 6 मंथ से करवाएं, नहीं पॉसिबल तो एटलीस्ट एनुअली तो इसको जरूर कैलिब्रेट करवाएं अपने कारपेट को। अब इसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आप उसका पुश बटन दबाएं तो आपको बहुत स्लोली और स्मूथली पुश बटन आपको प्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल जोर लगा के आपने उसको पुश कर दिया। और जब भी आप एस्पिरेट करें उसके टिप का प्रॉपर ध्यान रखें, ठीक है। और जब भी आप सैंपल लेने लगे, और सैंपल भी सफिशिएंट सैंपल होना चाहिए, ऐसा ना हो बिल्कुल कम सैंपल है तो तब भी आपका प्रॉपर एस्पिरेट नहीं होगा। तो आपको टिप भी जरूर चेंज करनी है जितनी बार भी आप सैंपल डिफरेंट उसमें रिएजेंट में डाल रहे हो या कुछ भी अलग आप ले रहे हो अलग ऑपरेशन के लिए, तो टिप जरूर चेंज करवाएं। आपको जो पिपेट है कभी भी ऐसा नहीं रखना कि आपको उसको जब आप उसको एस्पिरेट कर रहे हो कि आपको उसका नीचे लेटा दो या उसको उल्टा करके ऐसा रख दो। तो आपको उसको प्रॉपर उसका स्टैंड होता है जो पाइपेट का, आपको उसी का स्टैंड करना है, ठीक है। तो आप जितना प्रॉपरली यूज करोगे वो चीज प्रॉपरली आपका वर्क करेगी। हाँ, तो अगर वेरिएबल पिपेट है तो उसको मैक्सिमम पर ही करके आपने उसको रखना है, ऐसे नहीं रखना उसको। क्लीनिंग और मेंटेनेंस आपको रिमूव अपने टिप इंजेक्टर को रिमूव करना है, और उसके बाद आपने जो उसका टिप इंजेक्टर है उसको सॉफ्ट क्लॉथ के साथ या टिश्यू पेपर के साथ अपने उसको क्लीन करना है, ठीक है। जो पाइपेट है पूरी पाइपेट उसको भी सॉफ्ट क्लॉथ या टिश्यू पेपर के साथ अपने उसको क्लीन करना है। अगर आपकी पाइपेट ज्यादा गंदी है तो इसके लिए कुछ सॉफ्ट ब्रशेस वाला ब्रश आप यूज कर सकते हो। और आप उसको जितना इसको कोई सॉल्यूशन पे नहीं आपने इसको क्लीन करना या आपने कोई और कुछ नहीं यूज करना, तो एक नॉर्मल टिश्यू पेपर आप लेना और सॉफ्ट क्लॉथ लेके या वाइट सॉफ्ट पाइप होते हैं आप उससे इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो आपकी टिप है उसको भी सॉफ्ट क्लॉथ या डिजिटल वाटर से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। जो आपकी आप अगर उसको यूज करते हो बार-बार, सॉरी आप अगर स्पेशली जो आपका टिप होल्डर है, ठीक है, उसको अगर आप यूज कर सकते हो तो उसको ऑटोक्लेव करके भी आप यूज कर सकते हो, बट जनरली तो आप नया ही उसको चेंज ही करते हो। और जब भी आप उसको यूज करो तो आप ड्राई करके उसको यूज करो। Next, yours. विजिट मशीन तो आप मशीन तो आप अपने यूज करके आपके
निजी मशीन को भी डेली मेंटेन करना है और मंथली मेंटेन करना है। और इसमें अगर इनके कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, उसके जब आइटम पे आपको कुछ भी आपका एरर दिखाई दे या आपके मेंटेनेंस जो आपके उस पे सॉफ्ट की बनी होती है, जो मेंटेनेंस की होती है, अगर वो कभी रेड इंडिकेट करे या कुछ भी, तो आप अपने सर्विस इंजीनियर को जरूर कॉल करें। डेली वाले मेंटेन करते हैं उसको। तो डेली मेंटेनेंस में आपको क्या करना है, आपने इसका लॉग जरूर फिल करना है आपने, ठीक है। आपका पाइपेट का तो लॉग नहीं मैंडेटरी होता, लेकिन आपको निश्चित का और बाकी सब जिन जिन इक्विपमेंट्स का आपको लॉग का पता है, उसके आपको लॉग जरूर फिल करने हैं। और उसके बाद आपको उसके डिस्प्ले पे आपको टेम्परेचर भी जरूर चेक करना है। जब आप इंक्यूबेट करते हो, उसके इंक्यूबेशन का टेम्परेचर जो है वो 37 तक होना चाहिए इसी स्क्रीन पर। तो आपको उसका प्रिंटर भी चेक करना है कि प्रिंटर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है या उसका नहीं कर रहा। उसके प्रिंटर पर भी ग्रीन लाइट आ रही है, रेड लाइट आ रही है, प्रिंटर खराब हो या कार्ट्रिज चेंज करनी है, वो चीजों का भी आप ध्यान रखें। और मेक श्योर जब भी आप यूज करें उसके जो डॉट्स हैं वो सब बंद होने चाहिए। और उसकी स्क्रीन पर जो है वहाँ पे आप मेंटेनेंस सॉफ्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। आप उसको वहाँ पे जाके सेटिंग्स में अपने उसको सब कुछ चेक करना है, उसका टेस्ट इंडिकेटर, उसकी मेंटेनेंस, उसकी टेस्ट इंडिकेटर, आपने जो है ये सब इंडिकेटर वहाँ पे चेक करना है। और सब जो है उसकी ग्रीन लाइट होनी चाहिए वहाँ पे, वो सारी उनकी लाइट ऑन होनी चाहिए। नेक्स्ट मंथली में आपको क्या समय ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले इनके फिल्टर्स क्लीन करने हैं, ठीक है। फिल्टर्स इनके पीछे होता है, क्लीन करने के लिए आपको उसको नॉर्मल वाटर में जाके इसको क्लीन करके ड्राई करके फिर लगाना, सुखा के लगाना, गीले नहीं लगाने फिल्टर्स। वो चाहे सिग्नेट मशीन हो चाहे लिक्विड मशीन हो, ऐसे मतलब उसको धो के पहले प्रॉपर उसको सुखाएं, ठीक है। इसके बाद जो इसके कैलिब्रेटर्स है, आपको इनके कैलिब्रेटर्स का भी पूरा ध्यान रखना है कि इनके कैलिब्रेटर की एक्सपायर होने की डेट होती है 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कैलिब्रेटर्स कब एक्सपायर होते हैं। जब भी एक्सपायर होने वाले हो प्लीज ध्यान रखें, उसके 1 मंथ पहले ही आप एटलीस्ट एजेंसी को बोले कि आपके कैलिब्रेटर खराब होने वाले हैं और आपको कैलिब्रेटर प्रोवाइड करवाएं। अपने कैलिब्रेशन का, अपने उसके कैलिब्रेटर का पूरा ध्यान रखना है उसमें, ठीक है। ये आपको मंथली आप चेक करते रहेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा कि आपको पता चलता रहेगा आपके कैलिब्रेटर कब एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है। और आपकी हर चीज डॉक्यूमेंटेटेड होगी तो अगर तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। आपकी हर चीज डॉक्यूमेंटेशन पे होनी चाहिए। तो उसके बाद जब भी आप इसका कैलिब्रेटर ट्यूब को आप रिमूव करना है, उसको जो भी डिस्पोज करना है, वो आपकी जो इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज होंगी, जो प्रोसीजर होंगे वो आपको बताए होंगे। तो आपने उसके अकॉर्डिंग कैलिब्रेटर ट्यूब को उनको डिस्पोज करना, ठीक है। नेक्स्ट जीन एक्सपर्ट मशीन सेम, इसके साथ भी आपको डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस सबसे पूरा रखना है ध्यान इसका। और इसका भी आपकी पीएम कैलिब्रेशन उसका भी आपको प्रॉपर मेंटेन रखना है। आपको इसमें डेली में क्या करना है, आपने उसका सरफेस को वाइप से क्लीन कर, सिर्फ वाइप से। उसके बाद उसके कार्ट्रिज गया है उसको 70% से इथेनॉल से आप क्लीन कर सकते हो, उसी से क्लीन करना। उसके अलावा आपने कोई वाटर या फिर ऐसा कुछ और नहीं यूज करना, ठीक है। तो आप नॉर्मली उसका पूरा ध्यान रखें। इसकी क्लीनिंग का बहुत सेंसिटिव मशीन है तो उसकी क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखें। वीकली में आपको क्या करना है, उसका जो बाहर का इंटीरियर है उसको भी एक नॉर्मल क्लोथ से उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके फिल्टर, इसमें भी सेम है। वीकली आप अपने मशीन के फिल्टर चेक करें, वीकली नहीं तो एटलीस्ट मंथ में तो जरूर 15 डेज में आप फिल्टर जरूर आपने देखने हैं। फिल्टर चौक हो गए हैं, फिल्टर मशीन के पीछे फिल्टर होते हैं, तो अगर वो चौक हो गए हैं तो आप उसको क्लीन करके सुखा के पूरे उसको फिर उसको मशीन में लगाना है। इनकेस अगर आपके फिल्टर खराब हो गया तो ये भी चीज आप अपनी एजेंसी को बताएं। अगली तो वैसे आपको बिल डालना उसके लिए, तो आपको फैन फिल्टर उससे प्रोवाइड करवा देंगे। नीचे का भी सेम है, आपको फैन फिल्टर मंगवाने हैं तो आप उनको मेल करें या कॉल करें, तो आपको फैन फिल्टर जो है उसके प्रोवाइड करेंगे। तो आपको इनका फिल्टर्स का पूरा ध्यान रखना है और क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखना है इसका। कुछ इसमें मशीन समटाइम ऐसा क्या होता है कि कुछ एरर ऐसे आते हैं कि जो एरर मतलब कि नॉर्मल एरर हमारी मतलब एक यूजर की उसके मिस्टेक से ही हो सकता है। तो उसके लिए जैसे आप बिल्कुल पैनिक ना हो, कुछ एरर आप ध्यान रखें कि जैसे 2008 वो सैंपल के लिए आपका एरर आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, 15 मिनट वेट करके उसके बाद दोबारा उस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। 2127 पावर फेलियर का है, क्या पता पावर फेलियर हुआ उस वजह से ये एरर आ रहा हो, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको रीस्टार्ट करके उसको दोबारा मशीन को दोबारा उसका टेस्ट रिपीट कर सके।
पास 507 आ रहा है तो वो लेस वॉल्यूम का है, कि उसका जो आपने वॉल्यूम डाला है उसमें वो बहुत कम है, तो आप रिपीट करो सैंपल को, दोबारा से उसको सैंपल को नोट्स में लगाओ। ठीक है, तो ये कुछ एरर्स हैं कि आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे 1001 आ रहा है तो वो टेम्परेचर रिलेटेड है कि आपके रूम में टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, अब इस मशीन को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, कूलिंग इसके लिए पूरी एसी चाहिए, कूलिंग मेंटेन होनी चाहिए। तो अगर इसके लिए कूलिंग नहीं है, बहुत हीटिंग एरिया हो रहा है, तो इसमें तब भी इसमें इसमें एरर आ जाएगा। तो उसको आप को मशीन को कूलिंग मेंटेन करो और उसके बाद स्टार्ट करके आप उसका टेस्ट रिपीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर बहुत जैसे हार्डवेयर एरर आ रहा है या आपको कुछ और एरर आ रहा है तो आप उसको सर्विस इंजीनियर को जरूर बुलाएं। ठीक है, और एक चीज हर मशीन के लिए आपको ध्यान रखनी है कि थोड़ा डस्ट फ्री होना चाहिए, रूम में डस्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जीन एक्सपर्ट है, नीचे है, ये सब बहुत सेंसिटिव मशीन है। तो इसके लिए रूम एरिया क्लीन होने चाहिए, इनके लिए प्रॉपर एसी वर्क करता होना चाहिए, एसी वर्क करेगा, टेम्परेचर इनका मेंटेन करेगा। अब मिजिट मशीन है उसके लिए भी आपको रूम का मिनिमम 30 से नीचे ही टेम्परेचर होना चाहिए, उसका 30 से ऊपर जाएगा तो मशीन मिजिट मशीन भी आपकी एरर देना स्टार्ट कर देगी। तो तो आपको टेम्परेचर का भी पूरा ध्यान रखना है और रूम की क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है। मशीन के साथ साथ आपको आपके रूम, आपके एरिया जहाँ पे आपकी मशीन प्लेस है, आपको उसकी क्लीनिंग का भी पूरा ध्यान देना। नेक्स्ट टूनाट मशीन, सेव विद टूनाट हमारी जो जो मशीन है पीसी एनालाइजर एज अ यूज करते हैं, हम उसको टेस्ट के लिए, रैपिड टेस्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो इसकी भी डेली मेंटेनेंस आपको रखनी है आपको, और आपको सॉरी आपको सीबीनेट के लिए भी आपको लॉस मेंटेन करने हैं, ऊपर में भूल गई, आपको सीबीनेट मशीन के भी आपको लॉस डेली मेंटेन करने हैं, डेली उसकी रीडिंग का लॉस में मेंटेन रखिए और आप अपनी फाइल में उसको लगाइए। ठीक है, अब सेम इसका डेली मेंटेनेंस इसका भी है कि आपको जो इन्वायरमेंट है वो डस्ट फ्री होना चाहिए, और इसको जो है आप बाहर से भी मशीन को एक क्लीन फ्री जो टिश्यूज होते हैं, आप कॉटन से मत करें इसको भी, जो वाइप्स होते हैं आप उससे टिश्यू से या वाइप से इसको क्लीन करें। ठीक है, जो इसका सरफेस एरिया है जो ट्रू प्रेप का डिवाइस का, उसको 70% इथेनॉल से आप क्लीन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका कोई लीक हो गया, स्पिल हो गया, तभी आप 70% इथेनॉल से क्लीन कर सकते हो उसको, लेकिन उसके अलावा बाहर आप उसको एक नॉर्मल फ्लोर से भी आप क्लीन कर सकते हो। ठीक है, मंथली में भी आपको यही सब चीजों का ध्यान रखना है कि आप उसके टेम्परेचर चेक करें, उसकी कैलिब्रेशन चेक करें उसकी भी, और उसका सरफेस जो है वो भी क्लीन करें, बाहर से भी क्लीन करें और अंदर से भी उसको 70% तक इथेनॉल से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, और आपका इस मशीन को भी आप एनुअली जो भी है आप अपनी एजेंसी को बुलाएं, कैलिब्रेशन करवाएं इसकी भी, आपको हर इक्विपमेंट की आपको प्रॉपर कैलिब्रेशन एनुअली आपको परफॉर्म जरूर करवानी है। ठीक है, थैंक यू। Thank you, you all. I'm Dr. Ajay Verma again. Thank you, Dr. Manpreet Kaur, for nice presentation and excellent description about the instrument which are used in TV lab. So now it is the house open for question answer. Our colleague Dr. Gavi, he is the NRL microbiologist, senior microbiologist, and very vast experience, practical experience in doing working with all these instruments. Dr. Miss Manpreet Kaur is also with us, so she will also take up, and Dr. Neeti with her, and Mr. Prashant is also, Goswami is also with us. So all of us is here for taking any question from any side, please. Now floor is open. Anyone can ask any question related with the chat box. We can see no question has been asked. Question. If anyone, they can put in the chat box also. If anyone has any question who is not on the screen. Yeah, IRL Dharampur, please. Sir, good morning. This is Shipra Sharma, EK microbiologist from IRL Dharampur. Yeah, good morning, Shipra.
Sir, actually, हमें थोड़ा सा concern था. We have purchased new CBNAT machine for our state. It's near about 25 CBNAT machines. तो first of all हमारे पास जैसे हम CBNAT मशीन परचेज करते हैं तो एक तो कोई फ्रेम्ड जैसे CTT ने हमें प्रोवाइड करा था SOPs along with the booklet of error code. तो अगर इस चीज का PDF या ये बुकलेट ऑफ एरर कोड हमें हमारे नए मशीन के लिए भी मिल सकता है बिकॉज फील्ड में थोड़ा LTs को प्रॉपर छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग के लिए भी इश्यू आता है. ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना. आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट देके सभी को सर्कुलेट कर PDF सेंड कर दो. पेज निकाल के हम लगा लेंगे. पहले NTI बैंगलोर ने चीजें को शुरू में सर्कुलेट किए थे ना, लेकिन अभी तो ऑलरेडी अवेलेबल है ये साइट पे ना. एक्चुअली हमने इसको सेपरेट वाला से दिया था ना. वो पूरा का पूरा जो PDF है दैट इज नियर अबाउट 120 पेजेस. हाँ, तो उसमें भी जो सेपरेट वाला है ना कि कौन से एरर जरूरी होते हैं हमारे लिए, तो वो वाले एरर को निकाल के प्रिंट आउट उधर लगा सकते हो. और एक छोटा सा कैलेंडर भी उसका बनवा सकते हैं. वो सारी साइट तो GST और उनका तो बनाते हैं ना कैलेंडर. उस तरह कैलेंडर में उनको निकलवा लें प्रिंट आउट. तो हमसे अब क्या था ऑलरेडी बना. डॉक्टर लीजिए. Shipra, I would like to clarify. Number one, all the errors along with their description is already there in the module which has been provided with the machine. Number one. Number two, you can ask the company, people who have supplied you the machines, they will give you a calendar type thing which has got all the errors along with the description of the errors. So you can ask the company to distribute to all the sites since you have purchased already 25 machines. That is a good number, right? Yes, ma'am. Actually, I asked separate person to supply these things, but they said they were supplied by CTT, so they do not have such booklet with them. तो मैंने उनको बोला था कि you please share PDF with me. तो वो PDF जब मैंने देखा तो वो मतलब सिंप्लीफाइड नहीं था. तो मेरा जस्ट इतना कंसर्न था कि इफ मीन्स अगर कोई PDF उसका अवेलेबल है तो वो अगर मेल के थ्रू हमें शेयर हो जाए, हम उसका स्टेटमेंट प्रिंट निकलवा के फिर सभी जितनी भी हमारी साइट है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. Nobody says Shipra, we can always create a PDF and can forward it to you. Right? Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Anyone? Any other question? Dr. Lakshmi, please share the post test questionnaire. Yes, Yes, sir. Shared, sir. Shared already. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes. Yes. Myself, sir, Harinder Maikawali from Patiala, Punjab. सर मेरा ये क्वेरी थी जो माइक्रोस्कोप के लिए जो लेंस क्लिनिकली सोल्यूशन है उसका क्या नाम क्या था, मुझे पता नहीं है. लेंस क्लीनिंग का सॉल्यूशन या जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं सर क्लीनिंग के लिए, वो केमिकल का नेम क्या है? लेंस क्लीनिक करके ही आता है. उसका पर्टिकुलर क्लीनिंग जो एक्चुअली केदार वुड ऑयल होता है जो केमिकली उसका नाम है, बट लेंस क्लीनर ऑयल करके वो अलग से आता है. डोंट यूज एनी अदर ऑयल. जस्ट आस्क द कंपनी टू गिव द लेंस क्लीनर ऑयल दो इट इज द केदार वुड ऑयल. Yes, sir. Yes, chemically it is called. But He is asking about the lens cleaning solution, not the dark oil, not emulsion. केदार वुड ऑयल तो ऑयल इमल्शन हो गया ना जी. He is not asking about the oil emulsion fluid. He is asking about the lens cleaning solution. क्लीनिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं लेंस को क्लीन के लिए. डायलिंग में होता है परसेंटेज में बना के उसको करते हैं. सर मैंने ऑनलाइन देखा था डाई इथर होता है कोई केमिकल ऐसा कुछ. सर वेरी बिगिनिंग में डाई ईथर ये हमने दिया था बिल्कुल स्टार्टिंग में 2004 और 6 की बात है. डाई ईथर आया था उसमें. स्टार्टिंग में हमें फ्रॉम सेंटर से मिला था. अब लोकल में भी परचेज नहीं हो रहा, हमें मिल नहीं रहा लोकल में भी.
लेंस क्लीनिंग के लिए तो नॉर्मली लेंस रेशो यूज करते हैं। लेंस क्लीनर आता है लेंस भी ये मिल जाएगा आपको, देखो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे तो आया हुआ है, इसको इसी तरह से देखना पड़ेगा कि लेंस की तो बात है। सर मुझे मतलब उसकी फोटो भेज देना सर, वो जो केमिकल आपका अवेलेबल है ऑलरेडी अवेलेबल है, कंपोजिशन उसका देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है। This company से मिलता है एक, it's like same solution which we use for the चश्मा spectacles, same होता है ये, it has got water plus some ether plus alcohol. यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। Any other question? तो जो अभी डॉक्टर मनप्रीत ने काफी अच्छे से सारी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस बताया, लेकिन जो ओवरऑल लैब में जो हमारे पास रहते हैं मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। इक्विपमेंट की इन्वेंट्री जो कि हर लैब के पास होती है वो जरूरी है। इक्विपमेंट की इन्वेंट्री हो गई, उसके बाद हर एक इक्विपमेंट का एक इंडिविजुअल रजिस्टर होना चाहिए। तो इन्वेंट्री में सीरियल नंबर डालोगे, यूनिक आईडी डालोगे, एनएबीएल वाले लिस्ट है रजिस्टर, उनको सभी को पता है। जो एनएबीएल जिसके पास नहीं है उनको भी एक यूनिक आईडी देना होगा। नंबर 1 से आप स्टार्ट करके और जितना भी नंबर वहां तक जाओगे तो इक्विपमेंट इन्वेंट्री में सारा होना चाहिए, आपके रजिस्टर में होना चाहिए। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल एक निकाल लीजिए। जो भी माइक्रो वाले से अपने सामने जैसे आप चिपका के रखते हो सारी चीजें वो वहाँ पे लगा के रख सकते हो, जिससे लोग मिस ना हो जाए। पीएम के लिए कभी कभी आते नहीं, हमें खुद कॉल करके उनको बोलना पड़ता है, वैसे तो इंजीनियर आ जाते हैं। तो पीएम का शेड्यूल बना के रख लो हर एक इक्विपमेंट का। फिर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट जो इंडिविजुअल आप इक्विपमेंट का जो रजिस्टर फाइल बना रहे उसी में रहना चाहिए। कुछ लोग ना ऐसे ही इकट्ठा करके रख लेते हैं, पता नहीं होता किसका 2024 का मिल रहा है, उसमें 23 का मिल रहा है, हर एक इक्विपमेंट का ढूंढना मुश्किल होता है। तो जो इंडिविजुअल फाइल बनाई उसके अंदर आप इसको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट को लगा के रखिए। दूसरा एक डाउन टाइम रजिस्टर, जो ब्रेक डाउन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में हो रहा है तो उसके लिए डाउन टाइम रजिस्टर बना के रखोगे। उसमें इक्विपमेंट की डिटेल होगी, क्या प्रॉब्लम हुई है, कब आपने किसको कॉल किया, एक्शन टेकन हुआ है, करेक्टिव एक्शन क्या हुआ है उसका, वो सारा उसमें मैसेज करके रखोगे। तो कभी होता क्या है कि ये इसका इम्पैक्ट इसलिए होता है कि आप कभी सपोज करो आपकी विजिट मशीन खराब हो गई 15 दिन के लिए और पेशेंट रिपोर्ट लेने आ रहा है, तो आपके पास एक उसका जस्टिफिकेशन होगा कि हम 15 दिन से टेस्ट क्यों नहीं लगा पा रहे, क्योंकि ये काफी सीरियस इशू हो जाते हैं कभी कभी ना। तो आपके पास सारा प्रूफ होगा तो आप उसको दिखा पाओगे, कोई आपसे ब्लेम नहीं कर पाएगा कि आप किस वजह से आपका डिले हो रहा है, टेस्ट क्यों हाई हो गया है। तो वो सारी चीजें अगर ब्रेक डाउन का रजिस्टर मेंटेन करके रखोगे तो जो इंजीनियर है वो भी आपका उसको भी पता है कि आपने सारा चीज बना के रखा हुआ, तो वो भी टाइम पे आएगा और सारा कुछ टाइम पे सही करके देगा। उधर टेम्परेचर का लॉग और हर एक रूम का टेम्परेचर, हर एक मशीन का टेम्परेचर का लॉग मस्ट है होने के लिए। बिना थर्मामीटर के मतलब जैसे माइनस सबसे 4 डिग्री पे जो फ्रिज है उसमें थर्मामीटर नहीं होता, तो क्यूसी के लॉग आपके पास सारे होने चाहिए। दूसरा जैसे ऑटोक्लेव की बात थोड़ी मेंटेनेंस तो आपने कर लिया, लेकिन लोग केवल जो इंडिकेटर टेप है उसी को यूज करते। कभी क्या होता है कि हमारा ऑटोक्लेव प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, जिससे कंटामिनेशन और बाकी सारी शुरू हो जाते हैं। तो एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर सभी को पता होगा, बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी आपको ट्वाइस इन ए मंथ या वीकली या जो भी आप शेड्यूल बनाया था एटलीस्ट वंस इन ए मंथ तो आपको करना ही करना। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑटोक्लेव के क्वालिटी एश्योर कराने के लिए आपको रन कराना ही कराना है। और दूसरा एक बायोसिटी कैबिनेट में जो यूवी लैंप होती है, तो हर कोई उसकी ब्लू लाइट देख के बड़ा खुश हो जाता है कि यूवी लैंप काम कर रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता 4 से वो यूवी लैंप चेंज नहीं होती है। तो यूवी लैंप का कैसे आप एक्सपायरी डेट देखोगे? कभी मेंटेनेंस वाला भी आता है, वो ऐसे ही चुपचाप चला जाता है, कभी उसको रिप्लेस नहीं करते। तो इसका जो टाइम होता है, इसे घंटे में डेट होती है, 1000 1000 घंटे के लिए अगर 1 घंटे आपने चला दी तो यूवी लैंप खत्म हो गया।
तो ये आप उसको कैसे आप ये खुद आपको देखना है, उसका लक मीटर होता है जिससे कि वो उसकी इंटेंसिटी पता चलती है। वो कभी चेक नहीं करता मेंटेनेंस वाला। आप कभी भी देखना यूवी लैंप चेंज नहीं होती, बस ब्लू लाइट दिख रही है और उसको जला के छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं कि यूवी लैंप अच्छे से काम कर रही है, पर वो ब्लू लाइट ही होती है, बस कुछ नहीं होता उसके अंदर। तो ये भी आपको चेक कराना है। पाइपेट दो तरह की पाइपेट आपके यहाँ होती है, वेरिएबल हो गई और फिक्स वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम कहाँ पे केवल TrueNAT में यूज कर रहे यूज कर हैं। रहे हैं। तो वेरिएबल जो पाइपेट होती है उनका कैलिब्रेशन वगैरह होता है एनुअली या 6 मंथ में, लेकिन फिक्स वॉल्यूम पाइपेट आपको चेंज करानी है, उसका कोई कैलिब्रेशन नहीं है, तो रिप्लेस करके जाएगा। ये सारी साइड को पता चल ही गया है ऑलमोस्ट। तो TrueNAT की जो पाइपेट है, फिक्स वॉल्यूम पाइपेट है, उनको 6 मंथ में आपको रिप्लेस करके मॉल बाय वाले दे देंगे। तो 1 महीने को बता रहे हैं। ठीक है, don't mind that. Any other question and query? सर जो आपने बोला है कि ऑटोक्लेव के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर आते हैं, तो सर उसके लिए तो फिर इंक्यूबेटर भी चाहिए होगा ना सर 37 डिग्री वाला। हाँ, इंक्यूबेटर वो तो इंक्यूबेटर नहीं है, लैब में तो इंक्यूबेटर तो होता है। अब जैसे सर अलग कोई है जिसके पास ऑटोक्लेव है लेकिन इंक्यूबेटर नहीं है सर, उसका क्या होगा? क्या नहीं है आपके? सर जैसे कि बहुत सारी लैबों में ऑटोक्लेव दे रखे हैं, लेकिन मतलब कैपेबल इंक्यूबेटर भी है। इंक्यूबेटर चाहिए इसका कि टेम्परेचर 56 तक जाना चाहिए। Then only you can able to check. Yes, sir. और you can use hotel होगा और emergency if you don't have the autoclave, what Prashant is saying can be used as stopgap. हॉट एयर का, लेकिन आपको टेम्परेचर वहाँ पे देखना पड़ेगा। हॉट एयर ओवन दो इट इज फॉर द डिफरेंट पर्पस, बट टेम्परेचर 56 बायोलॉजिकल इंडिकेटर के लिए चाहिए होता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, सभी को मालूम है कैसे करना है। चलो कोई क्वेरी है मेरे कोर्स सेशन रखेंगे। अगर किसी को डाउट है कि उस तरह बायोलॉजिकल इंडिकेटर लगाना है ऑटोक्लेव में, how it looks and how it is to be put on, we can always show you session. In any session they will clear. But in the meantime, if you don't have the biological indicators or you don't intend to buy a biological indicator, you can always use the indicator strip for autoclave. Chemical indicator. In each and every batch, either in sterilization or decontamination. अब कौन सी लैब से निर्मल कुमार? चौधरी देसरा कैट क्लिनिक से हूँ सर। फ्रॉम दिल्ली? यस सर, दिल्ली CDCR चौधरी देसरा कैट क्लिनिक रोहिणी। ओके, कोई any other question? We have 2-3 more minutes. Everybody completed post है? Dr. Lakshmi? Yes sir. How many of them completed the post test? Just a Any side have any question? 2 minutes. 2 minutes more. Lakshmi, question, post test question is available after the session also. yes sir. Forget to share in status, but okay, post test will be.
It's shared It's shared in the chat box, sir. Okay. Okay, Shared in the chat box. And it can be downloaded also, or it is individually sent to? They can fill, sir. Yeah, so mail and they will send back to you. Yes, sir. Yes, sir. It will be reflected in at the back end. Okay, good. So all the participants are requested, it is required to submit the post test. What about the state test? So post So post test, all are requested to submit the post test paper as soon as possible, or if not, then submit to the site. site. So So now with this, Mr. Prashant will give the closing remark and will close. Mr. Prashant, Please. Thank you all for your active participation in this wonderful session presented by Mr. Manpreet Kaur. and I hope after completion of this session, you will maintain this preventive maintenance activity in your laboratory and maintain the reports also. Log sheet should be maintained along with this routine maintenance and under the guidance of Dr. Ajay Kumar Verma, HOD, Department of Microbiology and in charge of NRL. we will We will this type of eco sessions every month, and we will incorporate in our agenda. You will suggest any session which will be means more appropriate for you. So every month we will conduct this type of session, and by the in next month of March, we will plan one more session. So this momentum should be maintained and from our side. So this is over and over to our HOD, sir. Yeah, thank you all. So now closing the session. thank you all the participants. Now Lakshmi, we can close the session. Yes, sir, sure, sir. Okay, Thank you. Bye. See you next. See you next. Thank Thank you, sir. Thank you. Recording stopped.